के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को राहुल गांधी की यात्रा में दी गई गाली और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के सर कलम करने की बात करने वाली ममता बनर्जी की करीबी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ देश भर की जनता का गुस्सा फूट रहा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उमड़ आई हैं। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर हुआ है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने न सिर्फ सीएम ममता बनर्जी बल्कि टीएमसी नेता जो कि ममता की बेहद करीबी हैं महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पुतला फूका। दरअसल महुआ मोइत्रा पर लगातार एक्शन की मांग ये महिलाएं कर रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि हम महिला होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको जानकारी दी कि राहुल गांधी जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर एक मंच लगा था उस यात्रा के दौरान और उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक तरीके से गाली गलौज किया गया, जिस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से घुसपैठियों पर बातचीत करते हुए महुआ मोइत्रा ने यह कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सर काटकर मेज पर रख देना चाहिए, उसको लेकर भी अब पश्चिम बंगाल में न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी इस तरीके से वहां की महिलाएं और जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका गुस्सा फूट रहा है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ये नारेबाजी की गई है, पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया गया है, अपने जो कहीं ना कहीं एक तरीके से गुस्सा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी पार्टी की नेताओं के खिलाफ, वो दर्ज कराया गया है। क्या कुछ नारेबाजी करते हुए किस तरीके से उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है ममता सरकार के खिलाफ, महुआ मोइत्रा के खिलाफ, जरा सुनिए। বন্ধুগণ, আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন যে আজকের এই বিক্ষোভ সভায় আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে ছোট একটি সভা করে এখান থেকে একটি র্যালি আমাদের মাননীয় আমাদের যিনি সভানেত্রী তিনি সংগঠনের নির্দেশে সেটা আমাদের সূচনা দিয়েছিলেন, এটাই আমাদের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু আজকে অনৈতিকভাবে এই তোলাবাজ পুলিশ আমাদের ইন্টিমেশন থাকা সত্ত্বেও এই মঞ্চকে খুলে দিয়েছে এবং এই মঞ্চ শুধু খুলে দেয়নি, রীতিমতো তারা তর্কের পর তর্ক করে গেছেন। আজকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই যে যারা একটা মঞ্চ বাঁধলে এত তর্ক করেন, তারা অমিত শাহের মুন্ডু চাইলে কেন চুপ থাকেন? কেন তাদের মুখে আওয়াজ হয় না? কেন তারা আওয়াজ দিয়ে গর্জে ওঠেন না? মহুয়া মোইত্রাকে কেন অ্যারেস্ট করেন না? আজ যখন দেশের বিশ্ববরেণ্য প্রধানমন্ত্রী যেই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা জানি যে কৃষ্ণ যেমন পূজিত হন, তার পালনকর্তা মা যশোদা এবং দেবকীকেও আমাদের সনাতন ধর্মের শাস্ত্রে বিশ্বের দরবারে একটি উঁচু আসন দেওয়া হয়েছে। তাই মমতা ব্যানার্জি তরুদাস পুলিশ এবং কংগ্রেসের স্নেহধন্য টাপ্পুকে কে অধিকার দিয়েছে যে বিশ্ববরেণ্য নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে যেই গর্ভ জন্ম নিয়েছে সেই গর্ভধারিণী মাকে অপমান করে এত সাহস কোথা থেকে আসে? তার প্রতিবাদে আজকের এই গর্জন সভা। আমরা এর জন্য ধিক্কার জানাচ্ছি। যেহেতু একজন মহিলার অপমান নয়, এটা ফাল্গুনীদের অপমান, এটা বেবি তিওয়ারির অপমান, এটা মহুয়া মোইত্রার অপমান, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপমান। যেখানে মাকে পুজো করা হয়, দেবী দুর্গাকে পুজো করা হয়, মা কালীকে পুজো করা হয়, যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বিদেশিনী মহিলা নিবেদিতাকেও পুজো করা হয়, মাদার টেরেসাকেও সম্মান দেওয়া হয়, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা সারদাকে প্রণাম করেন। যেখানে ভবতারিণী দক্ষিণেশ্বরী কালিকায় নমঃ বলে মা কালীকে দক্ষিণেশ্বরে প্রণাম করা হয়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন মাকে কিভাবে অপমান করার পরে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই টাপ্পু, এই যুব নেতা, যুব জাতির কলঙ্ক, কংগ্রেসের কলঙ্ক, সিপিএমের কলঙ্ক, সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব জাতির কলঙ্ক। যেই গর্ভের কাছে পুরো বিশ্বের সমস্ত তাবড় শক্তি প্রণাম জানায়,
যেই গেলে পরে হাততালি থামে না, যিনি অন্য দেশের পার্লামেন্টে গেলে সেখান থেকে করতালি দিয়ে বিশ্ববরেণ্য নেতাকে অভিবাদন জানানো হয়, পুষ্পবৃষ্টি করা হয়, সেখানে গালি বৃষ্টি, কথার বৃষ্টি, অনাস বৃষ্টি, দুরাচার, এই বেভিচারীদেরকে বাংলা থেকে উৎখাত করতে হবে, দেশ থেকে উৎখাত করতে হবে বন্ধু। তাই গর্জে উঠুন একজন মায়ের অপমানের বিরুদ্ধে, গর্জে উঠুন দেশের স্বনামধন্য এবং স্বমহিমায় বিদ্যমান একজন সৎ মানুষ, যিনি কিনা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজির মুন্ডু চাওয়া মহিলা মিত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। আর যিনি এই গর্জন চাইছেন, যিনি বলছেন অপমান করছেন, তাকে प्रश्न করছি। तो आपने ये तस्वीरें देखी, ये नारेबाजी सुनी और देखा कि किस तरीके से पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जाहिर किया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी, जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ हर राज्य में लगभग अब FIR दर्ज हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। लोकेट चटर्जी ने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा बोल देता है तो उन पर तुरंत एक्शन हो जाता है, लेकिन जब गृह मंत्री पर इस तरीके की बातें कही गई हैं, वो भी TMC की एक लीडर के जरिए, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या कुछ सवाल जो है लोकेट चटर्जी ने उठाए हैं और ममता से क्या मांग की है, जरा सुनिए। पीएम के खिलाफ जो पीएम का माँ के खिलाफ, माताजी के खिलाफ जो बोले हैं कांग्रेस ने, और यहाँ पे महुआ मोइत्रा TMC का सांसद जो देश का होम मिनिस्टर के लिए जो भाषा का संतराश जो प्रयोग किया है, इसके लिए, और सिर्फ ये दोनों नहीं, एक के बाद एक तृणमूल का लोग महिला को लेके जो भी भाषा यूज करते हैं, उसके लिए हमारा ये मिছিল है। इसके लिए मुख्यमंत्री को जांच होना चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री को क्षमा होना चाहिए देश के सामने, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री को उनका प्रतिनिधि जैसे करके, देश का होम मिनिस्टर को ऐसे करके जो भाषा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। नहीं तो जब मुख्यमंत्री को कोई कुछ बोलते हैं, उनके लिए कोई भाषा कुछ बोलता है तो उसको अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जब प्रतिनिधि बोलता है तब कोई अरेस्ट नहीं होता है, तो उसको भी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। और जगह जगह में जो FIR हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, बाहर स्टेट में FIR हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी FIR हो। हम लोग करेंगे, ये आंदोलन आज से शुरू है, ये जिला जिला में मंडल स्तर में होगा और थाने के सामने भी होगा, बहुत सारा कुछ होगा। देखिए, भारत में सब लोग जानते हैं कि तृणमूल चोर है। अभी तृणमूल खुद स्वीकार किया है कि हम लोग चोर हैं, खुद लिस्ट का नाम दिया है। लिस्ट का जब नाम दिया, इसका मतलब तो प्रमाण हो गया कि ये लोग करप्शन किया था, इसमें लिस्ट में किया था। तृणमूल से शुरू हुआ ये लिस्ट, तृणमूल में ही खत्म होगा। और हम लोग चाहते हैं जो लोग टेंटेड नहीं है, वो लोग का जो नौकरी है उसको परमानेंट होना चाहिए, उसको रखना चाहिए, और बाकी जो टेंटेड जो स्टूडेंट्स लोग हैं उसको नौकरी जाना चाहिए। और सिर्फ जो टेंटेड है उनका लिस्ट अभी निकाले हैं, लेकिन जो लोग पैसे लिए हैं उसका लिस्ट कहाँ है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो लोगों का नाम है, वो लोग किसको रुपया दिया है, इसको भी ये लोग सामने लेके आए सोशल मीडिया की तरफ से, हम लोग उसका साथ देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि दो अलग अलग मामले हैं, लेकिन एक मामले में प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल और उनकी माताजी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई, और उसके बाद जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने दरअसल बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर रोजाना दूसरे देश के लोग लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और
और हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, तो पहले आपको अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर लोग हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं और हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो फिर ये गलती किसकी है? ये हमारी या आपकी गलती है? यहाँ तो बीएसएफ है, हम भी उनसे डरकर हैं। ये तमाम बातें महुआ मोइत्रा ने कही थी, वो जानकारी हमने आपको दी थी, जिसके बाद तुरंत महुआ मोइत्रा पर शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लगातार जो है मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यही है जो बीजेपी के नेताओं के जरिए पश्चिम बंगाल में पूछा जा रहा है कि हर राज्य में शिकायत दर्ज हो रही है, लेकिन जहां की वो सांसद हैं आकर वहां पर उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, पहले तूतड़ाक का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, उसके बाद उनके लिए बनाया गया एक मंच जिससे इस तरीके की गालियां दी जाती हैं, तो आखिर इसमें एक्शन क्यों नहीं है? ये सवाल लगातार जो है वहां पर बीजेपी के जर के पूछे जा रहे हैं और ये लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। কাছে আপনাদের জানানোর প্রয়োজন যে কলেজ স্কয়ার থেকে আমাদের ধর্মতলা অবধি কালকে আমরা ইন্টিমেশন দিয়েছিলাম এবং সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন থানার ওসি আইসিরা আমাদের ফোন করেন এবং বলেন ওখানে দুটি আমাদের আরো মিছিল আছে, সেখানে করতে দেওয়া যাবে না, আপনারা রুটটা বদল করুন। আমরা তাদের কথা মতো রুট বদল করি এবং আমরা মেল করি এবং তারা যেভাবে বলেছেন আমরা সেইভাবেই এই সভা এবং আমাদের আজকের মিছিল আমরা করার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু আমরা সকালবেলা থেকেই দেখলাম যে আমাদের এই স্টেজ করতে দেওয়া হয়নি, ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই বিপজ্জনক স্টেজের মধ্যেই যে স্টেজ সঠিকভাবে বাঁধা হয়নি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুলে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেই আমরা এই প্রোগ্রাম করছি। কারণ আমাদের যে প্রোগ্রাম সেটা এই দলদাস পুলিশ বলুন, তৃণমূলের বি টিম, অর্থাৎ যা তৃণমূল তাহাই প্রশাসন, তাদের বাধা সত্ত্বেও আমরা এই প্রোগ্রাম করব। আপনারা জানেন আজকের এই প্রতিবাদ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববরেণ্য নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির মাকে নিয়ে মোহাম্মদ রিজভি ওরফে রাজা, বিহারের নেতা, যে ধরনের কটূক্তি করেছেন, একজন স্বর্গীয় মারা গেছেন, তার মাকেও তারা ছাড়ছে না, সেইটা নিয়েই আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা। এবং আপনারা জানেন বারবার আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মদকা সওদাগর থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তিকর বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করেছে ইন্ডিজোট। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি এবং এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের নেতারা যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করছেন, মিসেস মৈত্র যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন গৃহমন্ত্রী সম্পর্কে, আমরা সেটা কন্ডেম করছি এবং আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যদিও বা এই মিসেস মৈত্রকে নিয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কারণ তার ব্যাপারটা সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি তার ঘরের লোক, তিনি ভালো জানেন, তিনি বারবার করে সেটা নিয়ে উল্লেখ করেন এই মিসেস মুখার্জিকে নিয়ে। তো আপনারা জানেন আমরা মিসেস মিত্রকে নিয়ে, আমরা এই মিসেস মিত্র সম্পর্কে বলতে চাই একটু আপনাদের সামনে। তিনি অনেক কিছু চান, কিন্তু এই যে লাভলি খাতুন, যে এখানকার ভোটার নয়, যার ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড সব তৈরি করে দিয়ে আপনারা জনপ্রতিনিধি